You pop. Miracle. Revolution. Tailored just for your skin. Skin Solution. The gift of nature has met the science of skin. Awaken your skin and give more radiance, more firmness, more richness. Within 4 weeks, it's a brand new you. Atomy Synergy Ampule Program. Simple and powerful Wrinkle Care Stick Balm. Effortless, effective, amazing effects created by a tailored 4-week intensive care solution, tailored to your skin. Activating highly concentrated and high-content tailored ingredients right before using the product increases the effectiveness. Advanced hydration, Vitoluminous, 24-karat gold infusion, miraculous rejuvenation. 4 customized solutions to help treat your skin troubles are miracles that will wake up your sleeping skin. Atomy Synergy Ampule activates the Core Ampule and Active Ampule just before use, and freshly delivers the active ingredients of each product to the skin. Active ingredients are stored separately to apply high-content ingredients. The product is fully stable and will show you immediate synergetic effects. In the first week, the foundation is laid on the skin with a moisture and elastic foundation solution. From the second week, whitening, wrinkle, and anti-aging intensive solutions are applied. You can select and use the desired program according to your skin condition. Experience a special and miraculous skin change with a 4-week intensive care program. Atomy Synergy Ampule is composed of Skin Awakening Peptide. The ingredient acts as an alarm call to wake up your sleeping skin. By activating the main activities of the skin every day, the product continuously makes your skin smooth and glowing. Instead of purified water, we extracted water from plants fit for the ampule's efficacy, using the vacuum low-temperature extraction method to minimize the destruction of the effective ingredients and enhance efficacy of total skincare. Make sure to pop the active ampule right before using it and mix it with the Atomy Synergy Ampule to activate the ampule's efficacy. Code number 0. Advanced Hydration. Starter Moisture Ampule with advanced moisture filling and skin firming effect in a transparent capsule that bursts with moisture. There are 3 special features of the Advanced Hydration Core Ampule. First, Baby NMF, a material developed by forming amino acids that are found only in baby's skin, helps moisturize and strengthen the skin's elasticity. Second, by applying a water bank system and a large amount of oil capsule stabilization technology, the ampule gives a moist and glowing skin with a refreshing hydration and the gloss and nutrition of the oil capsule. Third, by applying liposome technology, 8 plant-derived ingredients such as beta-glucan are stabilized in the core ampule and enhances the skin's moisture retention. In the Advanced Hydration Active Ampule, malachite extract forms a hydration and moisturizing barrier. Helps create elastic skin. Code number 1. Vitoluminous.
This brightening ampule contains 13 types of multivitamins that help to get radiant skin with melanin pigmentation multicare. Vitaluminous Core Ampule uses cell-active brightening code through cell-active technology. This enables the product to provide excellent brightening effect through fast and accurate targeting of skin areas with trouble. It contains highly potent active ingredients to further strengthen the effect. Vitaluminous Active Ampule separates and stores high-content pure vitamin C so that it can be kept fresh. Popping the ampule right before using helps maintain bright and clean skin without blemishes. Vitaluminous Core Ampule and Active Ampule have a powerful brightening effect through a combination of 13 multivitamins. In particular, compared to the vitamin C single-ingredient combination product, our product is a highly effective ampule without causing skin irritation. Code number 2. 24 Karat Gold Infusion. A prestige ampule that contains 8 types of peptides and 24 karat gold to care for deep wrinkles with an amazing lifting effect for firm skin. The 24 karat Gold Infusion Core Ampule uses cell-active lifting code through cell-active technology. Provides excellent lifting effect through fast and accurate targeting of skin trouble areas. The main ingredients of 24 karat Gold Infusion Core Ampule include white lupin peptide that helps skin glow and increase firmness. Recording stopped. 7 types of peptide complex that improve the overall elasticity of the skin through organic connection with a 3-step peptide mechanism. Contains 24 karat gold that helps skin glow and become more elastic, lifting the skin. Recording stopped. 24 karat Gold Infusion Active Ampule's main ingredient is a high content of resveratrol. Resveratrol is a representative material of polyphenols extracted from berries and can help effectively care for troubles caused by aging. Another feature of 24 karat Gold Infusion is the water bank gel system, which closely fills the skin with effective ingredients. Upgraded deep wrinkle care and elasticity care maintenance effect. Code number 3. Miracle Rejuvenating. Anti-aging ampule that helps increase skin density with highly concentrated, high-content next-generation derma-active ingredients. Miracle Rejuvenating Core Ampule uses the cell-active all-might code of cell-active technology. Enhances anti-aging effects through fast and accurate targeting of trouble areas. The main ingredients of Miracle Rejuvenating Core Ampule are firming care ingredients that exist in the human body. 6 kinds of peptides organically connected to the 3-step peptide mechanism help the overall lifting care of the skin. Similar to natural moisturizing factors, it contains lactate that helps strengthen the skin barrier without side effects. Miracle Rejuvenating Active Ampule contains sucralfate as the main ingredient, a next-generation derma-active ingredient that helps skin regenerate and soothe. Miracle Rejuvenating Ampule is a densely composed water-holding system that provides basic skincare and rich nutrition.
Atomy confidently presents a solution the world has never seen before for your amazing change. Atomy Synergy Ampule Program. Atomy Absolute, a long description is not necessary because the history of afterwards testifies to it. Shall we check right away? Kim Sejong Prize, the grand prize awarded to the best patent technology by Korean Intellectual Property Office. Absolute won it for the first time for cosmetics. Absolute's technology, innovativeness, and its impact in the industry was the most exclusive. Next, Jang Sil Award, named after the outstanding scientist. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं सेल्स मास्टर शिखा वर्मा, ऑल इंडिया ट्रेनर। आज सभी लोगों के पास एक और नए अपने प्रोडक्ट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है एटमी मिल्क थिसल। और एक और हमारा प्रोडक्ट है एटमी का नोनी ड्रिंक। तो जितने लोग यहाँ पर अभी एटमी मिल्क थिसल को यूज कर रहे हैं, सभी लोग प्लीज अपने मिल्क थिसल को साथ में रखें। और दूसरा, जिन्होंने अभी नया ज्वाइन करा है कंपनी, जिनको भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको बता दिया जाए कि ये सेशन हमारे वीकली 3 दिन चलते हैं, 4 बजे से लेकर के 5 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आपको जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, हमारी जो प्रोडक्ट की जो सेशंस है वो आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है कि उन प्रोडक्ट्स की ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करिए, क्योंकि ये आपको जिसके साथ भी इन प्रोडक्ट्स को शेयर करने की आपको लगता है कि मुझे इसको दूसरे को समझाना है, तो उसके बारे में पहले हमें खुद जानकारी जरूर चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्यों हम किसी को इजीली रेकमेंड कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसी ताकत है, हमारे प्रोडक्ट की ऐसी खासियत है जिसके लिए अगर हम किसी को भी बोलते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पॉइंट आपके पास होने चाहिए। उसके लिए आपको अपने हर एक प्रोडक्ट का, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स यूनिक है, हम एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस पर काम करते हैं, तो एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस ऐसे ही तो नहीं बन चुके हैं। एब्सोल्यूट प्राइस एब्सोल्यूट क्वालिटी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स भी होने चाहिए। सो वो पॉइंट्स आप कैसे जान पाएंगे, उनके लिए इन सेशंस को कंडक्ट किया जाता है। तो आप सभी लोग, आज का जो एक अमेजिंग प्रोडक्ट है एटमी का मिल्क थिसल, जिसको मैं बताऊंगी। और अगर मैं ये कहूँ कि आज की डेट में अगर हमारे पास दिन भर में 10 लोगों से अगर हमारी बात होती है, तो उसमें से 2 को फैटी लिवर की प्रॉब्लम मिलती है। सो ये प्रोडक्ट आपके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि फैटी लिवर के लिए लोग केमिकल मेडिकेशन पर जा रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। आप पहले कोई एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, मेडिसिन के तौर पर यूज कर रहे हैं, या अगर आपको किसी ने रेकमेंड किया है तो आप यूज कर रहे हैं, एंड देन फिर आप उसके लिए उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है, उसका जो एक आफ्टर इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए भी आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, और फिर एक नया केमिकल ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, और जिसका फिर एक साइड इफेक्ट होता है। सो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है जो आपको मार्केट में अवेलेबल केमिकल प्रोडक्ट से छुटकारा दिला सकता है या उसके साइड इफेक्ट्स को किल करने में हेल्प कर सकता है, सो डेफिनेटली वी विल गो विद दैट प्रोडक्ट्स। तो एटमी का जो मिल्क थिसल है वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एटमी का मिल्क थिसल, अब प्रोडक्ट आई थिंक सबके पास होगा, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इस तरीके की बॉटल में आता है और कुछ इस तरीके के जो टैबलेट फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। रेड कलर का टैबलेट होता है, क्योंकि हमारे लिवर का कलर भी जो होता है वो एज सच रेड ही होता है, इसीलिए इसका कलर इस तरीके का है, राइट। अब ये आपको सबसे पहले तो है कि
लिवर पे काम कर रहा है डेफिनेटली। जैसे हमने बताया कि आज की डेट में अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक ले, एक आंकड़ा अगर हम लेकर के चलते हैं, तो 5 में से 1 की मौत जो है वो लिवर डिजीजेस की वजह से हो रही है। मे बी वो आपका फैटी लिवर क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जा रहा है, मे बी लिवर की वजह से कोई अगर बीमारी हो रही है, लाइक हेपेटाइटिस हो गई, ABC, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, या अदर कोई भी आपके जो प्रोडक्ट है जिसमें आपका इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए अगर हम कहें कि आपको शुगर की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो उसमें भी लिवर का आपका इम्पैक्ट है कि कहीं ना कहीं आपका फैटी लिवर उसमें अपना जो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा है उन चीजों को बढ़ाने में। तो वहां पे अगर हम इंडिया की स्टेटस को भी ले सकते हैं तो अगर हम 5 लोगों से बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि 10 लोगों से मैं बात कर रही हूँ, तो 2 लोग मुझे ऐसे मिलते ही हैं। यहाँ पर एक जो आंकड़ा आपके पास है कि अगर आप 5 लोगों से बात कर रहे हैं तो 2 लोगों को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम मिल रही है, और जो कि शायद हम में से जितने भी लोग फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो आपको लिटरली ऐसा देखने मिलता है। और इसमें हम एज को भी कैटेगराइज नहीं कर सकते। एक समय था कि जब हम इसमें एज वाइज कैटेगराइज कर सकते थे कि इनको नहीं हो सकता, उनको होगा, उनके में चांसेस हैं, उनको नहीं हो सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम छोटे बच्चे को भी देखते हैं ना, तो उसके में फैटी लिवर की प्रॉब्लम आपको मिल रही है, क्योंकि सबका खाने का रूटीन और खाने का जो एक एल्गोरिदम है वो बिगड़ चुका है। स्लीप साइकिल सबकी डिस्टर्ब हो चुकी है, अलग अलग शिफ्ट्स में सब लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, ब्रेन एक्टिवेशन ज्यादा है, जिस वजह से उसका कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रेशराइज होता है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर, जो कि हमारी बॉडी का हल्का सा स्लाइट राइट पोर्शन में आपका एब्डोमेन के जस्ट ऊपर में जो हमारा ये पिंजरा कहते हैं ना, हड्डी का जो पिंजरा वाला हिस्सा होता है, वहां का जो डायफ्राम होता है जिससे हम सांस लेते हैं, तो डायफ्राम आपका ऊपर नीचे होता है, वो हिस्से के पास ही ये छोटा सा ऑर्गन जो है आपको दिखाई देता है। लेकिन ये छोटा सिर्फ हमारे पूरे बॉडी साइज के हिसाब से है, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे पूरे बॉडी का ये एक मेन ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और शायद यही वजह से हमारे मिल्क थिसल का जो कलर है वो ये वाला कलर है आपका, जो थोड़ा सा रेडिश कलर में आप लोग को दिखता है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे इसका जो वेट होता है जो हमारे लेवर का है, वो अगर हम एडल्ट के वेट की बात करते हैं तो लगभग 1.5 kg के करीब का होता है, राइट। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। किस तरीके से देता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर, कि आप अगर इस चीज को मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से आपका योगदान है, जो भी आपका एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, जैसे खाना हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, मुंह में ले रहे हैं, उसके बाद वो डाइजेशन के लिए जा रहा है। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के बाद एसिमिलेशन, एंड देन आपका क्या हो रहा है, वो एक्सक्रीट होता है। मतलब पहले आप मुंह के अंदर उसको ले जा रहे हैं, फिर उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने के बाद वो आपके खींचा जाता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, उसके बाद फिर वो ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके पहुंचाया जाता है, और फिर वहां से बाय प्रोडक्ट्स लेकर के बॉडी से बाहर किया जाता है। देखने में तो ये प्रक्रिया बड़ी लगती है कि 5 ही स्टेप्स तो हैं, बट ये पूरे 5 स्टेप्स में आपके लगभग 8 घंटे जाते हैं, राइट। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने में सबसे बड़ा अगर रोल हम बात करें तो लिवर का है। किस तरीके से है, वो आपका मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बाद अगर हम सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये वहां से न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, हार्मोन मतलब बैलेंस का काम करता है, एंजाइम्स रेगुलेशन का काम करता है, प्लस यहाँ से आपका बाइल जूस सिक्रीट होता है जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। जो भी आप लोग ये मेडिकेशन वगैरह लेते हैं ना, इसका सबसे पहला अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम ये आपकी बॉडी को बचाने का काम करता है उस केमिकल साइड इफेक्ट से। लेकिन क्योंकि इसके भी बहुत सारे चूंकि काम हैं, लेकिन ये बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आपने जितनी मेडिसिन वगैरह खा करके रखी है उसका बहुत सारा कम इफेक्ट आपकी बॉडी पर जाए और ये अपने ऊपर ले लेता है। तो ये डिटॉक्स करने का काम करता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के लिए और ड्रग्स के लिए, ड्रग्स इन द सेंस जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट।
अब आप ये सोचो, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो कर रहा है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉब्लम में जो इसके ऊपर असर पड़ रहा है, क्या हम उसके लिए इसकी हेल्प कर पा रहे हैं? क्या हम इसकी क्लिनजिंग कर पा रहे हैं? एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं बात करती हूँ। घर में हम लोग चाय बनाते हैं, क्योंकि एक साइंस टीचर और एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादा अच्छे से अगर समझ आएगा कि अगर हम थोड़ी देर के लिए जो चाय होती है उसको हम अपना अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मान लेते हैं, और जो छन्नी होती है उसको हम लिवर मान रहे हैं, वहां से हमने उस प्रोडक्ट को उसमें पोर किया, आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो चले गए नीचे। लेकिन अब जो डिटॉक्सिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो ये जो लिवर है क्या कर रहा है, वो सारा जो चाय पत्ती का मेजर कंपोनेंट है वो तो अपने ऊपर रख लिया। आप क्या चाय पत्ती के उस जो छन्नी होती है उसको वैसे ही छोड़ देते हो? आप क्या करते हो, आप उसे डस्टबिन में डंप करते हो, या आपके जो प्लांट्स होते हैं उसमें अच्छे से पहले चाय पत्ती को क्लीन करके फिर आप अपने प्लांट्स वगैरह में एज अ कंपोस्ट भी डाल करके यूज कर लेते होंगे। तो जब आप उस चाय छन्नी के लिए इतना काम करते हैं, तो आपको अपने लिवर के भी क्लिनजिंग के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का। प्लस एज वेल ये स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज क्या करता है, ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, ये आयरन और विटामिन का स्टोरेज करता है, जो कि आपके अदर सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स को काम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब यहाँ पर होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्लिनजिंग की जरूरत है, हमारे लिवर को क्लिनजिंग की जरूरत है? तो कहते हैं ना कि हमारा हर एक ऑर्गन अपना एक आपको सिम्टम प्रोवाइड करता है कि मुझे ये दिक्कत है। ये बात अलग है कि मैं और आप उस सिम्टम को कई बार समझ नहीं पाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं लूं, बुखार हो जाना। हम परेशान हो जाते हैं, बुखार हो गया, बुखार हो गया। बुखार होना इट्स जस्ट अ सिम्टम कि आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ चुका है, जिसकी वजह से वो बुखार आपको जस्ट अ सिम्टम बता रहा है। अब आपको नोटिस करना है कि वो सिम्टम किस ऑर्गन के इफेक्ट होने के कारण आ रहा है, राइट? तो उसी तरीके से लिवर भी जब आपका डैमेज हो रहा होता है, वो आपको साइंस देता है। क्या साइन आते हैं आपके पास? कई बार स्किन और आईज जो होती हैं वो येलो होनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली हम लोग आंखों को देखते हैं ना, कहते हैं हाँ आंखें मतलब पीली हो रही हैं, इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? इची स्किन, हर समय स्किन में जिन लोगों को सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक समय तो शुरुआत में रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सोरियासिस ही मेजर फॉर्म में आया होगा। कभी इनिशियल उनको वो सिम्टम दिखे होंगे, बट उन्हें वो समझ नहीं आया होगा और वो चीजें बढ़ती हुई गई, तब आज जाकर के सोरियासिस के रूप में आ गया, या एक्जिमा के रूप में आ गया, या अदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन वो पहले आपको एक स्मॉल सिम्टम देता है। दूसरा, डार्क कलर यूरिन और पेल स्टूल, मतलब आपके यूरिन का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। एक नॉर्मल यूरिन जो होता है वो आपका येलो कलर का होता है, लेकिन जब इस यूरिन का कलर बदलने लगता है तो वो भी एक सिम्टम होता है, जिन्हें आप चाहे तो नोटिफिकेशन में ले सकते हैं। और स्टूल का कलर जो होता है वो हल्का पेल कलर का होने लगता है, तो उससे भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पैरों में स्वेलिंग होने लगती है, एंकल्स जो होते हैं वो स्वेल होने शुरू करते हैं, तो ये बताते हैं कि आइदर आपका लिवर या आपका किडनी में इन्फेक्शन है। बिकॉज ये एक्यूरेट सिम्टम्स नहीं होते हैं, दीज आर ओनली सिम्टम्स, कि इन चीजों की वजह से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कुछ दिक्कत आ रही है, मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ हो रहा है। फैटिग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी कम हो जाती है और हर समय थका थका सा महसूस करने लगते हैं। नाउजिया एंड वॉमिटिंग, बहुत जल्दी जल्दी वॉमिटिंग होने लगती है, जो पित्त की डकारें आती हैं उस तरीके की चीजें होती हैं। दीज आर ऑल द सिम्टम्स जो आपको दिखते हैं। एब्डोमिनल पेन, हर समय पेन होने लगेगा, पेट फूलने लगता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और वेट गेन, किसी किसी में वेट गेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि फैट डिपॉजिट होता जाता है, किसी किसी में वेट लॉस होने लगता है, जो ये बताता है कि आपके में ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका ये जो लिवर है वो हेल्दी नहीं है, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अब यहाँ पर आपका जो मेन रीजन होता है लिवर डैमेज होने का, ऐसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ओवरवेट या ओबेसिटी, अब यहाँ पर अगर हम कहें तो ओवरवेट भी हम एक दिन में नहीं होते हैं, हम धीरे धीरे अपने खाने का लाइफस्टाइल चेंज करते जाते हैं, चेंज इन द सेंस बिगाड़ते जाते हैं, तो वो एक समय के बाद आपकी ओबेसिटी हो सकती है। टाइम रेगुलेट नहीं है आपके खाने पीने का, फूड जो आप इनटेक कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से
कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, वो क्या हो रहा है, स्टोर ज्यादा हो रहा है। मतलब आपके खाने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होती है। कई बार होता है कि लोग बहुत हेल्दी भी खाना खाते हैं बट फिर भी उनका वेट बढ़ता जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ हम लोगों को कनेक्शन जब होता है तो वो बताते हैं कि नहीं, हम तो ये भी नहीं खाते हैं, हम तो वो भी नहीं खाते, फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। सो द प्रॉब्लम इज देयर कि आप अपना जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली इनटेक तो आप कर रहे हैं, बट आपकी बॉडी में उसकी जो मतलब कंजम्पशन है वो प्रॉपरली आप नहीं कर पा रहे। सो वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो कुछ ना कुछ फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड में लिपिड्स बहुत ज्यादा है, या कोई हैवी मेडिकेशंस आपके चल रहे हैं, या कुछ इनहेरिटेंस कंडीशन आपकी होती है जो आपके मैटरनल पैटर्नल साइड से आपको मिलती है, तो दीज आर द ओनली रीजन जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है। अदरवाइज आधे से अधिक चीज के जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले होते हैं कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हम अननेसेसरी कैलोरीज स्टोर करते हैं, जो शायद हमें लगता है कि क्या है, 2 समोसे ही तो है, लेकिन वो 2 समोसे कितनी कैलोरीज लेकर के आ रहे हैं ये हम नहीं देखते। राइट, हम कहते हैं हम 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही तो खा रहे हैं, महीने में 1 ही बार तो खा रहे हैं, बट जितनी हमारी बॉडी की नीड है उससे कहीं वो ज्यादा कैलोरीज हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इनटेक नहीं होगा तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर एक चीज और आ सकती है, अल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करते हैं बट वो कहीं ना कहीं स्मोकिंग भी अगर हम एक रीजन ले सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर ये भी आपका कॉज कर सकता है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग भी आपकी 2 तरीके की हो सकती है, एक डायरेक्ट हो सकती है, एक इनडायरेक्ट होती है। एक होता है मैं स्मोक कर रही हूँ, ठीक है, एक होता है मेरे बगल में जो मेरे काम कर रहा है वो स्मोक कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो मेरे इनहेलेशन में जा रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा नोटिस करना होगा और लोगों को भी अवेयर करना होगा कि भाई आपके थोड़े से शौक के चक्कर में मेरी जो हेल्थ है वो भी डैमेज हो रही है, बिकॉज इनडायरेक्टली मैं आपके जो भी कंजम्पशन है उनका शिकार हो रही हूँ। राइट, सबसे पहले जो कंडीशन दिखाई गई है वो हेल्दी लिवर की दिख रही है। किस तरीके का दिख रहा है, ये थोड़ा सा आपका रेडिश कलर का है। जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल खराब होती जाती है, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, आप वर्कआउट नहीं करते हैं, जितनी कैलोरीज आपकी जरूरत है उससे एक्सेसिव कैलोरीज आप लेते हैं, आप उसे बर्न नहीं करके मेंटेन करने में सफिशिएंट नहीं है आप, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे फैटी लिवर में कन्वर्ट होता है। फैटी लिवर क्या मतलब होता है कि आपका जो लिवर होता है वो धीरे धीरे पेल कलर का होता जाता है। फिर आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, अब वो आपका धीरे धीरे किस चीज में चेंज होता जाता है, फाइब्रोसिस में चेंज हो जाता है। मतलब उसमें धीरे धीरे गांठें पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो हार्ड होता जाता है। नॉर्मली जो हमारा लिवर है वो मस्कुलर ऑर्गन है, राइट, तो जब हम उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, वो फिर धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा, क्योंकि उसके बीच में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होनी थी, जो ब्रीदेबल एरियाज थे, वहां पर अब फैट का कंजम्पशन हो गया, वो वहां पर स्टक हो गया, तो भी वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, उसको भी आपने इग्नोर कर दिया, या कुछ ऐसे हैवी एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लिए जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी आपका जो फेब्रोसिस है वो फिर आपका फाइनली लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेटर कि आपकी चीजें वर्स्ट फेज में जाएं और तब आप उसके लिए कुछ काम करें, तो बेटर टू यूज इन अ अर्ली इनिशियल स्टेज। हमें उन्हें समय रहते ही डिटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें हमें नोटिस हो जाती हैं। कई बार होता है कि हम शुगर टेस्ट कराते हैं, उसमें निकलता है, फिर आप क्या सोचते हो, रेंज में तो है, पिछली बार कराया था नहीं निकला था, इस बार अगर निकला है ना तो यू शुड हैव टू अवेयर कि अब इसे बढ़ने नहीं देना है और इसे वापस अपने रेंज में ले आना है। अगर हम उसी दिन इस चीज को समझना शुरू कर देना तो शायद उस वर्स्ट सिनेरियो तक हम नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगर ये पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो भी मेटाबॉलिज्म का काम है उन पर इम्पैक्ट करेगा, स्टोरेज का काम है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होने लगेगा, जिसकी वजह से अगर वो ज्यादा हार्ड होने लगा तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होंगी, क्योंकि अल्टीमेट प्रेशर फिर आपके हार्ट पे पड़ना शुरू होगा, किडनी पे फंक्शन पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा कि पैरों में सूजन और एंकल पे सूजन, जाहिर सी बात है अगर वो ढंग से फिल्टर नहीं करके किडनी को देगा तो किडनी फिर फिल्टर का काम करेगी, जो कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, तो उसका अल्टीमेट ऑप्शन आपका क्या आएगा, लिवर भी डैमेज, देन किडनी भी डैमेज, फिर हार्ट पे भी असर।
बोन लॉस हो जाएगी, क्योंकि भाई बोन पे प्रेशर पड़ेगा, चीजें हार्ड होती जा रही हैं, तो बोन भी उसके हिसाब से आपकी थोड़ी सी दिक्कत करेगी। ब्रेन डिजीजेस होने की चांस है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर सारी चीजें नहीं मिलेंगी, रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, उसको एक्शंस नहीं मिल रहे हैं कि उसे करना क्या है, उसका सारा मोटर नर्व जो है, उसका सारा सेंसरी नर्व जो है वही काम नहीं कर रहा है कि उसे किसको क्या मैसेज प्रोवाइड करना है। धीरे धीरे क्या होता है, चीजें आपकी पर्टिकुलरली सारी डैमेज होने लगती हैं। फिर उसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, क्योंकि भाई सारा मैसेज ही बिल्कुल मिस एंड मैच हो चुका है। तो फिर वहां पर आपका एपेटाइट भी खत्म होएगा, आपका स्लीप एप्निया भी होएगा, प्लस आप इन फ्यूचर कार्सिनोमल सेल्स के घेरे में आएंगे ही आएंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या कैसे आप कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि आप अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। क्या करना है, आपको मैक्सिमम जो फाइबर का इंटेक करना है, राइट। फाइबर इंटेक अगर आप ज्यादा से ज्यादा करते हैं, लाइक वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, इनका कंजम्पशन आपने ज्यादा करना है। पानी लगभग 4 लीटर के करीब आपको पीना है, दिन भर में 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना ही पीना है। एक्सरसाइज रेगुलरली, क्योंकि जितना आप इंटेक कर रहे हो उसको बॉडी से वाइप ऑफ। बहुत सारे लोग हमारे पास जब एक बैलेंस वेट कम करने के लिए, बैलेंस डाइट के टाइप के प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो वहां पर उनकी क्वेरीज होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो मैं उनको कभी भी अपना कोई भी प्रोडक्ट सप्लीमेंट नहीं यूज करने के लिए बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट काम करेगा आपके जो भी फैट्स है उसको मेल्ट करने में, बट बॉडी से वाइप ऑफ करने का काम जिस ऑर्गन का है वो आपके वर्कआउट के थ्रू ही होगा, आपके योगा के थ्रू होगा, आपकी कुछ लिटिल बिट एक्सरसाइज के थ्रू होगा, स्टेप्स कवर करने से होगा। आपकी बॉडी से बायो प्रोडक्ट्स निकलने चाहिए, नाइट्रोजन वेस्ट निकलना होगा कहीं, तो वो चीजें जो आपके स्टक है बॉडी में, तभी तो वो वाइप ऑफ होंगी, तभी तो आपको एक एक्चुअल शेप मिलेगा। आप वो सब चीजें करोगे नहीं और फिर आप कहोगे कि आपका प्रोडक्ट फायदा नहीं कर रहा है। मैं सीधे मना करती हूँ कि नहीं, अगर आपको ये चीजें करनी है तो आपको कुछ बदलाव करने हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ये भी नहीं खाना है, वो भी आप खाओ, लेकिन एक लिमिट में खाएं, प्लस जो भी आप खा रहे हैं उसको पूरा कंज्यूम करा दें बॉडी में, राइट। और एक पर्टिकुलर टाइम पर खाएं, जिस समय जिस चीज के लिए टाइमिंग बनी हुई है उनको आप यूज करें। अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें। सफिशिएंट स्लीप, लगभग 7 से 8 घंटे की एक जो पावर नैप होती है वो हमें लेनी जरूरी होती है। क्या चीजें नहीं करनी है, हाई फैट फूड्स नहीं खाने हैं, शुगर्स कट आउट करना है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है अननेसेसरी, ये ऐसे हो गया वो ऐसे, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर है उसके ऊपर काम करो। अगर आप किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं तो उसको अपनी प्रॉब्लम मत बनाइए, राइट। और दूसरा, अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर अपना एक जो अपना एक सप्लीमेंट है अपना एटमी के पास, उसको आप यूज करिए, जिससे आपका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करने में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन इट डजंट मीन कि सिर्फ सप्लीमेंट खा लेने से आपका सारा चीज सही होगा। उसके लिए भी आपको कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। जो डूज हमने बताए हैं वो करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, आपके डूज को और इफेक्टिवली काम करने में हेल्प करेगा। आपका मिल्थिसिल, क्योंकि इसके साथ आपका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी आ रहा है, तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स मतलब आपके गुड बैक्टीरियाज को ग्रो करने का काम करना है। ये जो मिल्थिसिल होता है, ये एक सिलिबम मरियन नामक का जो एक पेड़ होता है, इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें हाई अमाउंट में सिलिमरीन होता है। अब ये सिलिमरीन क्या काम करता है, सिलिमरीन काम करता है आपके लिवर की हेल्थ को मेंटेन करने में। साथ ही साथ आपकी जो एक तरह से अगर हम बोले ब्लड शुगर के मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर लिवर फैटी होता है तो कई बार लोगों के ना ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, अलग अलग पोर्स जो होते हैं उनके एक्ने बनने शुरू हो जाते हैं वो सब चीजों में, तो उनको मदद करता है कम करने में। साथ ही साथ आपकी बॉडी से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो प्रॉपर्टी होती है उसको बनाने का काम करता है, प्लस आपके लिवर की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत अच्छे से काम करता है। इवन आपका जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, उसको भी रिलीज करने में हेल्प करता है और एंटीवायरल का भी काम करता है।
ये जो आपके बेनिफिट्स हैं ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर इन सारी चीजों पे ये काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिवर का जो एक हार्ड एंड फास्ट काम हो रहा था, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था, वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो अपना काम नेचुरली करना शुरू करेगा। लिवर इन्फ्लेमेशन जो लिवर की क्लिनजिंग करने में हेल्प कर रहा है। लिवर जो डैमेज आपका होगा, उसने टॉक्सिक इतना कलेक्ट कर लिया कि अब उसे ही डिटॉक्स करने का समय आ गया। सो उसके लिए ये आपकी मदद करेगा। आपके जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं वो आपके लिवर पे इम्पैक्ट न डाल पाए, उसके लिए हेल्प करेगा। आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा और आपके लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। कैसे खाना है आपको, इसको सुबह शाम एक एक टैबलेट को खाना है, सुबह शाम लेना है। 2 टैबलेट आपको पर डे कंज्यूम करना है। इससे आपको क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपकी इससे लिवर हेल्थ अच्छी होगी, आपका न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म बूस्ट होएगा। वर्किंग टाइम अगर आपका जैसे जल्दी थक जा रहे हैं तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। अगर आप देर तक भी खाना खा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब शिफ्ट्स तो हम लोग नहीं चेंज कर सकते ना, शिफ्ट्स तो हमारी हैं, लेकिन वहां पर भी आपको एक बैकअप मिलेगा कि आपके सप्लीमेंट्स जो हैं एटमी के, वो आपके पीछे एक सपोर्ट के तौर पर खड़े रहेंगे। अगर आपको कोई चीज मैनेज करने में दिक्कत हो रही है हेल्थ शेड्यूल में, तो वहां पर ये सप्लीमेंट्स, क्योंकि अब आप एक प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते हैं दिन भर में, आपके पास इतना टाइम नहीं है, सो दीज सप्लीमेंट्स आर बेस्ट फॉर द फिलिंग द गैप, राइट। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो भी आपके हेल्प करेंगे, प्लस आपके लिवर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तो था हमारा एक अमेजिंग प्रोडक्ट, जहां पर हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है हमारे लिवर को बचाने का। अब यहीं पे हमारा एक और दूसरा प्रोडक्ट है एटमी का नोनी ड्रिंक। जिसने भी पिया होगा वो लोग जानते हैं कि नोनी किस तरीके से काम करता है और नोनी की जो यूएसपी होती है वो क्या होता है। सबसे पहले तो ये है कि ये फर्मेंटेड फॉर्म में है। अगर आप सभी लोगों को आपने साउथ इंडियन डिशेस के बारे में अगर सुन रखा है, तो आपको जहां तक मुझे ध्यान है मैक्सिमम उनकी जो डिशेस होती है ना फर्मेंटेड होती है। लाइक डोसे का बैटर भी वो एक दिन पहले से रखते हैं, इडली बनाना है तो भी रखते हैं, सांभर वगैरह में वो जो इमली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली उनका मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करना, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि वहां पे चीजों पे उनको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा बीमार ही रहेंगे, राइट। तो वहां पे आपका एक फर्मेंटेड फूड जो है सप्लीमेंट के रूप में, ऑर्गेनिक नॉनी के रूप में आपके पास एक हेल्थ और डिलीशियस टेस्ट है। जब हम इसको आइस क्यूब के साथ लेते हैं तो मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा था। जब हम एटमी सेमिनार में गए थे तो आइस क्यूब के साथ, नॉर्मली मैं आइस अलग से नहीं खाती हूँ, लेकिन जब हमने वहां पर कंज्यूम किया था बहुत अच्छा टेस्ट इसका लगा। सो इसको आप ऐसे भी इंटेक कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे भी इंटेक करते हैं, एंड आप इसको लाइक जूसेस वगैरह के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 100% NFC नोनी एक्सट्रैक्ट होता है। नोनी इस तरीके का फ्रूट होता है जो जावा के आइलैंड से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे इन द सेंस एटमी के प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब हम एटमी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक चीज आपको बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की जो 100% ऑथेंटिसिटी है वो हम किस तरीके से बात कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पर आप स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है 100% ऑर्गेनिक नोनी हार्वेस्टेड फ्रॉम एटमीज फार्म ऑफ जावा आइलैंड, इंडोनेशिया। अब क्योंकि आप और हम जावा की जो नोनी है वो बेस्ट नोनी मानी जाती है, ठीक है। मैं और आप जावा जा करके हर बारी नोनी लेकर के नहीं आ सकते, लेकिन जब एक एटमी का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, सो वी आर 100% अश्योर्ड कि हमारे पास जो नोनी आ रही है वो जावा आइलैंड की इंडोनेशिया से ही ली गई है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देती है वो 100% करेक्ट होती है। और हमारे प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहले उस सॉइल की जांच करी जाती है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड नहीं होता है। सो जो चीज आपके पास आ रही है वो 100% ऑर्गेनिक ही आएगी, राइट। तो जो भी प्रोडक्ट है आपके पास अगर 100% लिख के आ रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनिक है, उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है।
और नाइदर उसके प्रिजर्वेटिव में उसके प्रिजर्वेशन में किसी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है। ये हमारी कोलमार्क की टेक्नोलॉजी होती है, इवन अदर हमारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो इस पर बेहतरीन तरीके से काम करके इसको एज सच इंटैक्ट फॉर्म में रखने में हमारी मदद करती हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ऑथेंटिसिटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो एटमी का नाम ही काफी है, राइट। ये आपका एक ज्वाइंट रिसर्च गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है, जिसको प्रिपेयर करने में लगभग 1440 घंटे लगते हैं इसकी फर्मेंटेशन और एजिंग करने में। मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है ये आपका 1414 घंटे का होता है, राइट। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको गिफ्ट फ्रॉम गॉड कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बायोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके लाइक प्रोक्सेरोनिन की होती है, पॉलीफिनॉल्स होता है, आयरिडॉइड्स होता है, जो कि आपकी हेल्दी लाइफ को बनाने में बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। किस तरीके से करते हैं? प्रोजेग्लोराइन्स जो होता है इसका कंजम्पशन अगर हम बात करें तो 200 तरह के नोनी में फाइटोकेमिकल्स हो रहे हैं। प्रोजेग्लोराइन में आपके 7 तरीके के मिनरल्स भी हैं, लाइक कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम, मोलिब्डेनम। ये सारी चीजों की अगर हम बात करें तो ये चीजें हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब किस तरीके से बेनिफिशियल है, क्या काम करेगा? ये काम करेगा आपका कि किस चीज की आपके में डेफिशिएंसी, लाइक बहुत सारे लोगों को डेफिशिएंसी होती है विटामिन की। अभी आजकल के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी हर लोगों में पाई जा रही। तो ये चीजें जब हम इनका सप्लीमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप अश्योर्ड होते हो कि जब आप उसका 1 कप इंटेक कर रहे हो तो आपके पास प्रोजेग्लोराइन का भी आ रहा है, स्कोपोलेटाइन का भी आ रहा है, आयरिडॉइड्स का भी आ रहा है, पॉलीफिनॉल्स का भी आ रहा है, उसमें आपके मिनरल्स भी आ रहे हैं 7 टाइप्स के, 18 डिफरेंट तरीके के एमिनो एसिड्स भी आ रहे हैं, आपको विटामिन का भी कॉम्पोजिशन मिल रहा है। प्लस ये जो प्रोक्सेरोनाइन आपका है ये क्या काम कर रहा है, ये आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो कि इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं इनको प्रॉपर एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ड्यू टू एनी रीजन आपका जो सिस्टम है वो अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये उन चीजों को एक्टिव करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो जेरोनिन होता है ये एक एक्सेप्शनल क्वालिटी के साथ होता है कि ये प्रोटीन बिल्डिंग का काम करता है। जो भी प्रोटीन आपकी बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं उनको रिपेयर करने, मतलब डैमेज प्रोटीन प्रोडक्ट्स को रिपेयर करने का काम करता है, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये कंटिन्यू फंक्शनल रहता है। स्कोपोलेटाइन की बात अगर हम करें तो ये एक तरीके का आपका सिंपली एंटी न्यूप्लास्टिक है, एंटी डोपामिन एनर्जिक है, एंटी कोलिनेस्टिड है, कि जिसकी वजह से आपकी सारी चीजें सिस्टमाइज होती हैं, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप अगर नोनी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप अपने हेल्थ के लिए अश्योर्ड होते हैं कि इन सारे विटामिन और एमिनो एसिड्स की जो कमियां हैं वो आपका पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है, और अगर स्मोकिंग वगैरह भी कर रहे हैं या जंक फूड वगैरह भी खा रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट को ये बैलेंस करने में काम करेगा। मतलब आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सारी चीजों का कंजम्पशन करते रहें। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इन चीजों का कंजम्पशन किया है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई आफ्टर इफेक्ट है तो उसमें ये चीज आपको कम करने में मदद करेगी, राइट। ये आपका, अब अगर आप इनटेक कर रहे हैं इसका तो जो नोनी है वो लगभग 143 गुना ज्यादा कीवी से काम इफेक्टिव कर रहा है, 140 गुना ज्यादा टमाटर से ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है, और 121 गुना ज्यादा मैंगो से अधिक काम कर रहा है। रिच पॉलीफिनॉल में है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन को टच ना करें, मिस अंजुम या मिस्टर अंजुम जो भी हैं, डोंट टच द स्क्रीन। इसका जो सोर्स है प्लीज मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें। सॉरी,
ये पॉलीफिनॉल्स और एरिडॉट्स इसके साथ बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से काम कर सकता है। अगर आप कीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये अगर क्योंकि खट्टा होता है ना टेस्ट में, थोड़ा टैंगी टेस्ट होता है, तो मैं आपको बताऊं ये कीवी से 143 गुना ज्यादा, टमाटर से 144 गुना ज्यादा और मैंगो से 121 गुना ज्यादा पॉलीफिनॉल्स में होता है। यानी कि जितना आपका 121 मैंगो देगा वो आपका नोनी का एक बॉटल में कंजम्पशन है, अगर आप इसके एक बॉटल का कंजम्पशन करते हैं। 120 टाइम पॉलीफिनॉल ज्यादा है, लगभग 2.55 कीवी से ज्यादा है, 2.99 मैंगो से ज्यादा है। और अगर आप नोनी का कंजम्पशन करते हैं तो लगभग आपका जो अपग्रेडेशन है पॉलीफिनॉल्स का वो 364.7 तक का आ सकता है। ये सारे आपके यहाँ पर जो डाटा आपके पास है ये मोरिंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनाइटेड स्टेट्स से लिए गए हैं। सो हमारे पास हर एक चीज का प्रूफ होता है। अगर हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हम इजीली किसी को भी अपने प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास हर एक चीज का एविडेंस है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स ऑन एयर हैं उनका एक पर्टिकुलर पीछे उसके डाटा एनहांस होता है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो किस तरीके से ये बनाया जा रहा है, आपका जब इसको कल्टीवेट किया जाता है तो ये सारी प्रोसेस भी कंपनी के मतलब ऑब्जर्वेशन में की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उसको दे दिया गया। कंपनी क्या करती है, जब किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कराना होता है उस पर्टिकुलर चीज को ओन करती है अपने नाम से, और हम उनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू ये सारी चीजों का देख रेख किया जाता है। सबसे पहले तो आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है कि ये ऑर्गेनिक फार्म है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है। फिर वहां पे उस नोनी को ग्रो कराया जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एटमी ऑर्गेनिक नोनी फार्म लिखा हुआ है, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया ओन कर लिया जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब वो पूरी तरह से केमिकल फ्री रहता है तब वहां पर नोनी का फॉर्मेशन प्रोडक्शन कराया जाता है। फिर जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है तो वहां से नोनी को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको एक जो भी इनका वेयरहाउस होता है वहां पर ले आते हैं और उसमें से नोनी के फ्रूट का जो एंड स्टेम होता है, जो उसकी गांठ से जुड़ा होता है, उसको निकाला जाता है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपके पास नोनी का जूस आ रहा है और फिर उसकी 3 बार टैप वाटर से लगभग प्रॉपर ब्रशिंग के साथ उसको वॉश किया जाता है। इसमें से सारा जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव कर लिया जाता है, मतलब उसको एक फ्रोजन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके पूरे मॉइस्चर को रिमूव कर लिया जाता है एंड देन इसको -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रोजन किया जाता है, मतलब जमाया जाता है। उसके बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है और रेफ्रिजरेशन किया जाता है, क्योंकि 1440 आवर्स मैंने आपसे बताया था कि इसके पूरे फर्मेंटेशन में लगते हैं। अब इसको वहां से रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में लेकर के इंपोर्ट किया जाता है और इसका जब ये आता है वापस जहां पर इसको दूसरे जगह पे जब इसकी